Hello class 10. So we are going to discuss some questions of chapter 10 exercise 10.2 and these are first 6 questions from this chapter. So it says the point Q from a point Q length of tangent to a circle is 24 centimeter. तो आपको पता है ना length of tangent क्या होती है? The point from where the tangent is drawn to the point of contact. So इस वाले point को हम मान लीजिए P बोलते हैं point of contact and O let it be the center of the circle. अब इसने बोला length of tangent 24. So let's mark it as 24 and the point Q is at a distance 25 centimeter from the center. तो ये वाला जो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है दिस इज 25 centimeter and they are asking to find the radius of the circle which is OP in this question. Because of 1 mark को हमें बहुत presentation नहीं चाहिए तो हम directly theorem apply करेंगे आंसर निकालेंगे. अब हमें पता है ना कि tangent is perpendicular to the radius so this angle is 90 degree. And if this angle is 90 degree, we can use Pythagoras. अब Pythagoras में हमारा 90 के opposite जो side होता है, that is hypotenuse. So square of hypotenuse is equal to the sum of square of perpendicular and base. अब यहाँ पे आपका OQ जो है, this is 25 and PQ it is 24. So I'm shifting it on the left side. So this is 24 square is equal to OP square. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है ए प्लस बी ए माइनस बी. और दूसरी चीज जो यहाँ पे आप एक और यूज कर सकते हो हम लोग आइडेंटिटी 3 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज कर सकते हैं. ठीक. और तीसरी चीज अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता है तो ये और भी आसान है बिकॉज 24 और 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेरा 7 होता है. अब अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद नहीं है दैट वाज द easiest way. तो second मेरा होगा using identity. So 24 plus 25 a plus b and then a minus b in the second bracket. This is OP square. So देखिए 24 plus 25 it is 49 into 1 is equal to OP square. तो OP का वैल्यू मेरा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर. तो हमारा आंसर है 7 सेंटीमीटर. अब आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता है आपने पेपर में ये डायग्राम बनाया और हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है 7 centimeter. Up, move on to question number 2. It says TP and TQ are two tangents to the circle with center O so that angle POQ is 110 degree. अब आप यहाँ पे एक पॉइंट T लीजिए यहाँ से आप दो टेंजेंट्स बनाएंगे नेम TP TQ. तो दिस इज TP TQ फ्रॉम पॉइंट T. अब इसने बोला एंगल POQ तो बेसिकली P और O को अगर मैं ऐसे सेंटर से ज्वाइन करती हूँ सो दिस एंगल इज 110 डिग्री. दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल PTQ. तो PTQ कौन सा एंगल है दिस एंगल PTQ. अब PTQ हम कैसे फाइंड करेंगे आई थिंक अगर आपको याद है तो दिस इज वन ऑफ द थ्योरम दैट angle between the tangent is supplementary to the angle made by line joining the point of contact to the center. So these two angles are supplementary. मुझे कुछ नहीं करना simply angle T को मैं supplementary property से find कर लूंगी तो 180 minus 110 70 डिग्री. देखो जी हमारा आंसर आ चुका है. फाइनल आंसर को मैं ब्लॉक कर रही हूँ सो दैट इट विल हाईलाइट. ओके. Next question number 3. It says if tangents PA, PB from point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle 80. तो देखो इसने ये जो बड़ी सी लाइन बोली उसमें इसने क्या बोला एक हमारी जो फर्स्ट टेंजेंट है PA, second tangent PB. तो let's choose this point as P. So this is PA and then from the same point there is one more tangent named PB. अब PA PB जो ये दो टेंजेंट्स मुझे दिए हैं these are inclined with each other at an angle 80 डिग्री. अब यहाँ पे हम लोग इसको सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. अब ये मेरा सेंटर O. अब इसने बोला व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल POA. POA इसका मेजर तो इसके लिए मुझे PO को ज्वाइन करना पड़ेगा लाइक दिस. अब POA ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है. ठीक. अब इसके लिए आपको जो पता होना चाहिए बेसिकली PAO triangle is congruent to triangle PBOQ. PA equal to PB.
tangents from external point PO common OA OB radius। ठीक, अब वन मार्क में ये सब कुछ तो हम करके नहीं दिखाएंगे ना, हमें तो डायरेक्ट आंसर पे जंप करना है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन निकलता है, एंगल P angle POA, this angle is equal to angle POB, this angle. So these two angles will be equal. So firstly, I will use the property angle P plus angle O. These are supplementary. ठीक है ना, angle P plus angle O supplementary 180 degree. तो यहाँ से मेरा angle O का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 minus 80, it is 100 degree. Got it? अब एंगल POA में इंटरेस्ट शो किया गया है तो POA will be half of angle O. So angle POA is half of angle O, which means it is yes 50 degree. Yeah, my answer for this question is 50 degree. Next, fourth question. The length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में जो मेजर प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो इस स्टेटमेंट को रिलेट थोड़ा सा अच्छे से नहीं कर पाते। तो देखिए, हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, पहले ए पॉइंट को फिक्स कर दो, सेंटर हमारा ओ होना ही है, उसको फिक्स कर दो। अब यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक, अब यहाँ पे इसने बोला है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अब ये जो पॉइंट ए है इट इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो ये जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस। अब देखो, जो गलती होनी थी पता चली, बच्चे क्या करते हैं जब ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, इस वाले डिस्टेंस को 5 ले लेते हैं, जबकि दिस इज नॉट द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? सो दिस इज द एरर डन बाय स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा जी, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है and this point is at a distance 5 centimeter. So ये वाला जो point है सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है। तो देखो लिखा हुआ था ना at a distance 5 centimeter. So this is the main problem that students face according to the statement. तो वो statement को अच्छे से relate नहीं करते, वहीं पे फंस जाते हैं। अब जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है। क्वेश्चन बहुत आसान है, पाइथागोरन ट्रिपलेट याद ही नहीं है तो अरे यार पूरा सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट करोगे क्या यार। 4 और 5 का पाइथागोरन ट्रिपलेट, यस इट इज 3। तो मेरा जो आंसर है ना, रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर है। अगर मुझे पाइथागोरन ट्रिपलेट आता था तो मैंने फटाफट आंसर लिखा और मैं कंफर्म हूँ, श्योर हूँ कि मेरा आंसर करेक्ट है। अब आप लोग क्या करोगे, घंटा तो लगा दोगे इसको निकालने में और फिर बोलोगे पेपर पूरा नहीं हुआ था। कैसे पेपर पूरा होगा अगर ऐसे काम करोगे तो। अब इसी चैप्टर के 2 क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ, दीज आर एक्चुअली द थ्योरम टाइप्स क्वेश्चन, क्योंकि इन वाले क्वेश्चंस को हम लोग यूज करेंगे एज theorem whenever these are required. Okay, so this question says prove that the tangents drawn to a circle at end points of a diameter are parallel to each other. Clear? So this is question 4 from NCERT अगर आपको देखना है तो। so this is my center O। इसने बोला prove that tangents drawn to a circle। तो अब देखो यहाँ पे टेंजेंट्स की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एक डायमीटर बना लेना चाहिए। ठीक, अब इसने बोला एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, अगर ए बी मेरा डायमीटर है तो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर विल बी ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करने को बोला है, लाइक दिस एंड दिस। ठीक, तो ये दो मेरी हो जाएंगी टेंजेंट्स। अब इन टेंजेंट्स को अगर आप चाहो तो नाम भी दे सकते हो उससे, एक्स वाई एंड पी क्यू। क्लियर? अब मुझे प्रूफ क्या करना है, आर के बाद जो लिखा हुआ है ना वो हमारे को प्रूफ करना है। सो दिस इज पैरेलल टू ईच अदर। तो अब क्योंकि ये थ्योरम टाइप क्वेश्चन है तो हमें इसमें क्या करना होगा, गिवन विच इज हमें क्या दिया हुआ है, अ सर्कल विद सेंटर ओ। वी आर गिवन विद अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक, ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर। और उसके बाद नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई एम गिवन दैट एक्स वाई एंड पी क्यू आर टू tangents are two tangents passing through A and B respectively, passing through A and B respectively। तो अब आप लोगों को जो चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे बहुत अच्छे से क्या ध्यान रखना है,
कि रिस्पेक्टिवली का मतलब है मैंने एक्स वाई टेंजेंट पहले लिखी तो इट इज पासिंग फ्रॉम ए, फिर मैंने पी क्यू टेंजेंट लिखी, इट इज पासिंग फ्रॉम बी। अब यहाँ पे मुझे टू प्रूव क्या करना है कि ये जो एक्स वाई टेंजेंट है दिस इज पैरेलल टू टेंजेंट ए बी। ओके जी, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ। इस क्वेश्चन में मेरे पास कोई कंस्ट्रक्शन एसेट है नहीं। अब थोड़ा ध्यान से काम करना, बहुत आसान क्वेश्चन है और लाइक 2 और 3 मार्कर में आ जाता है। तो अब यहाँ पे कौन बच्चा मुझे ये बताएगा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एक्स ए ओ? बहुत सारे बच्चों का हैंड्स अप हो गया। यस, एंगल एक्स ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। देखो मैंने टेंजेंट भी डिफाइन किया था, ओ ए जो है वो रेडियस में से जा रहा है, तो क्लियर है ना ये चीज हमें। फिर सेकंड पॉइंट में इस क्वेश्चन में क्या ले सकती हूँ, एंगल क्यू डी ओ अगेन 90 डिग्री एंड रीजन इज सेम। चिड़िया उड़ा दो, ओ बी क्यू बोलो या फिर क्यू बी ओ बोलो। तो 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओ, कौन से टाइप के एंगल बन गए ए एंड बी? जल्दी जल्दी जल्दी, ये देखो जेड, अल्फाबेट जेड। तो यस, दीज आर, मैं यस लिखने लगी थी, यस तो नहीं लिखना ना मुझे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। But these are alternate angles, and if alternate angles are equal then lines are parallel. तो आप यहाँ पे लिखेंगे therefore xy is parallel to pq. This is what we have to prove. देखो बातें करते जा रहे हो, बातें करते जा रहे हो और लिखने पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया भैया, एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। और यहाँ पे हमने लिख दिया था क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। समझ में आया? तो देखो ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है, तो डोंट यू थिंक लॉटरी निकल गई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी एंड अगेन दिस इज एक्चुअली थ्योरम टाइप क्वेश्चन. It says prove that perpendicular at a point of contact to the tangent to a circle passes through the center. अब देखो इसने बोला ये मेरा सेंटर है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासिस, देखो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ले लिया इस तरीके से, ठीक, और ये परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये वाला जो है मैं इसको टेंजेंट ले लेती हूँ ए बी। ओके, अब इसने बोला है मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है इट इज पासिंग फ्रॉम सेंटर। अब इसमें मैं एजम्पशन लेती हूँ अगर ये सेंटर में से पास नहीं कर रहा, सो ये कहीं ना कहीं से तो पास करेगा ना सर्कल में, तो लेट्स से इट पासिस फ्रॉम पॉइंट क्यू। क्लियर? सो गिवन में हम लोगों को क्या लिख सकते हैं, अ सर्कल with center O, a circle with center O, AB is tangent किस पॉइंट पे है, at point A on the circle and angle QAB is 90 डिग्री, ठीक है ना? क्योंकि देखो दिया हुआ था परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो मैंने परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ही चूज किया है, ध्यान रखिएगा। अब मुझे यहाँ पे टू प्रूव करना है, Q is center, Q is center of circle, ये मुझे यहाँ प्रूव करना है। अब हम यहाँ पे assumption, जो हमने assumption ली थी वो ये ली थी कि if this doesn't passes through the center, so let's say it passes through point Q. अब यहाँ पे हम लोग प्रूफ ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, 2 लाइंस ज्वाइन, खत्म काम। सो angle QAB is 90 degree, it is given to us, clear, and angle OAB is equal to 90 degree. क्यों? Radius is perpendicular, radius is perpendicular to, किस पर perpendicular है, perpendicular to tangent, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ इसका मतलब क्या हो गया, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। क्या हमने कोई चॉइस छोड़ी क्यू के लिए? नहीं, हमने कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी, विच मीन्स क्यू coincides, Q coincides O, clear, and which mean perpendicular at the point of contact passes through the center.